ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଇଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକି ନୋଟଟା ଦେଇନଥିଲି, ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ। ସେ କଣ କହୁଛି, ଯଦି ଆମକୁ ତିନିଟା linear equation ଦେଇଥିବ a1x plus b1y plus c1z equal to k1 ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ a2x plus b2y plus c2z is equal to k2 ଦେଇଥିବ, ଆଉ a3x plus b3y plus c3z equal to k3 ତିନିଟା linear equation ଦେଇଥିବ ଯାହାର କି ତିନିଟା variable ଥିବ। ତାହେଲେ ସେଠି ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଡେଲ୍ଟା କାଢିବ। ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ବି, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ। ସିମିଲାରଲି ଡେଲ୍ଟା x ଡେଲ୍ଟା y ଡେଲ୍ଟା z ବି କାଢିଦବ। ଯାହା ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଫର୍ମୁଲା ଜାଗାରେ ତମ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିକି। ତାପରେ ତମକୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଏତିକି ବି କହିଦେଇଥିଲି ଯେ x is equal to del x by del, y is equal to del y by del, ଆଉ z equal to del z by del। ତ ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ତିନିଟା କେସ୍ ଏଇଠି ଏରାଇଜ୍ ହଉଛି। ସେ ତିନିଟା କେସ୍ କୁ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଏଗେନ୍ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଦେଖ। କଣ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଆସିବ, ଆଉ ଆମ କେସ୍ 1 କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଆସିବ ଆଉ x y z ବି ଆମର ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଆସିବ, ବା x y z ର କିଛି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆସିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ହୋଇଥିବ। x ର ଗୋଟେ ଅଲଗା, y ର ଗୋଟେ ଅଲଗା, z ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଲ୍ୟୁସନ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ ୟୁନିକ୍ ହେଇଥିବ। ବୁଝିଲ କେସ୍ 1? ଏବେ କେସ୍ 2 କଣ କହୁଛି ଶୁଣ। କେସ୍ 2 କହୁଛି, ଯଦି ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଆସିଥିବ, ଆଉ x y z ଆମର ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଆସିବ। ମାନେ x y z ଟା 0 ଆସୁନଥିବ, କାହିଁକି ନା ଡେଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ 0 ଆସିବ, ସପୋଜ ଆମେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କାଢିବା, del x by del କରିବା ମାନେ କଣ, ସେ ଡିଫାଇନ୍ ହେଇପାରିବନି, ତଳେ ଆମର ଡିନୋମିନେଟର 0 ରହିଯିବ। ଯେତେବେଳେ del x by del କରିବା ତ ସିଏ କଣ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଆଡେ ପଳେଇଯିବ। ତ ସେ କେସ୍ ରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ x y z ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା the whole system is an inconsistent system। ସେମିତି କେସ୍ 3 ଦେଖ, ଯଦି ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଟା 0 ଆସିଲା ଆଉ ସଲ୍ଭ କଲା ବେଳେ x y z ବି ଆମର ଯଦି 0 ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିପାରିବା, ଇନଫାନାଇଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ବା ମେନି ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରିବ ତାର। ଏଇ ତିନିଟା କେସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ହଁ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରିଜ କର। ଦେଖ ଏ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଲିନିୟର ସିଷ୍ଟମ କଣ। ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଲିନିୟର ସିଷ୍ଟମ କଣ କହୁଛି, ସେମ୍ ଆମର ତିନିଟା ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଥିବ, ତିନିଟା ଭେରିଏବଲ ବି ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଲିନିୟର ସିଷ୍ଟମରେ ଟିକେ ଅଲଗା କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟା କହୁଥିଲି ସେଇଠି ଦେଖ a1x plus b1y plus c1z equal to ମୁଁ k1 ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ସିଷ୍ଟମ ରେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପରେ ଆମର ଯୋଉ ତିନିଟା ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଥିବ, ତାର ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିବ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ 0 ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଛ ତମ ମାନେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପରେ ମୋର ଦେଖ ତିନିଟା ଯାକ ଇକ୍ୱେସନ ର ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ ଅଛି 0 0 0 ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଲିନିୟର ହଁ ଇକ୍ୱେସନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଟା ହଉଛି ଆମର ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଲିନିୟର ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଲିନିୟର ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତାର ଭେରିଏବଲ ଯୋଉ x y z ଅଛି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ 0 କନଫର୍ମ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି, ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ x y z ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 କନଫର୍ମ ଆସିବ। ବୁଝିଲା, ସଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ 0 ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖ ସିଙ୍ଗୁଲାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କଣ କହୁଛି, ଯଦି a ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱେର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ତା ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଟା ନଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍କ୍ୱେର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କହିପାରିବା। ଯଦି ତା ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଟା 0
सॉरी मु कौन कहली जदि एटा गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स होइतो डिटरमिनेंट टा 0 होइतो ताले से हमर गोटे सिंगुलर मैट्रिक्स हबो आउ जदि डिटरमिनेंट टा 0 हबोनी किछि भी वैल्यू आसी जियो ताले से हमर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हबो मु एट लिखि छि तुम देखि परियो इफ a is a square matrix then determinant a equal to 0 is called a singular matrix if determinant a not equal to 0 then it is a non singular matrix तो तुम खाली दीटा मन रखियार अछि जदि डिटरमिनेंट 0 आसिला तो सिंगुलर मैट्रिक्स हैला आ जदि डिटरमिनेंट ता हमर 0 आसिलानी ताले से हमर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैला बुझिला हाँ एबे गोटे कथा कहू सुन गोटे मैट्रिक्स आउ से मैट्रिक्स एडजॉइंट जल्दी मल्टीप्लाई करिया ताले ता मल्टीप्लिकेशन दा सब बेले हमर डिटरमिनेंट a इनटू गोटे यूनिट मैट्रिक्स आसियो जहाँ मोर बॉक्स भीतर लिखिस देखो a इनटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू मु लिखिछि डिटरमिनेंट a इनटू i बॉक्स टा भीतर लिखिछि तुम देखि परियो इफ a इज a square matrix then a dot adjoint a is equal to determinant of a into I means unit matrix एड़ा मन रखताओ adjoint matrix कोन मु गोटे एग्जांपल नै कि तुम बुझे देबी बुझिला एबे देखो से लिखा आइछि द प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स and its adjoint is zero matrix एटा सब बेले मन रखिया सिंगुलर मैट्रिक्स का कहली जेते तार डिटरमिनेंट ता 0 आसियो तो 0 into सम मैट्रिक्स कले कोन दबो से जीरो मैट्रिक्स दबो बा नल मैट्रिक्स दबो सेति में बोली से एड लिखि छि जे प्रोडक्ट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स तो प्रोडक्शन दा सब बेले 0 ही आसियो एटा तुम सिंगल मार्क इंपोर्टेंट ही पारे तो याको मन रखि दियो प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स and its adjoint matrix is a zero matrix बुझि परलो हाँ हाँ सर एबे इनवर्स कोन आछि देखो जदि ए गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स अछि आउ मु तुम डिटरमिनेंट केतेले बाहर कइतली जेतेले बे सुनो गोटे मैट्रिक्स इनवर्स सेतेले बाहरियो जेतेले तार डिटरमिनेंट ता हमर 0 न होगी किछि वैल्यू दबो सबोले मन रखो गोटे मैट्रिक्स रो इनवर्स केतेले एग्जिस्ट करियो जेते बेले की से मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट बाहर गला बेले हमर डिटरमिनेंट 0 न आसीगिरी किछि वैल्यू आसियो ताहले ही जाईगी से केस रे हमर इनवर्स एग्जिस्ट करियो अदरवाइज हमर इनवर्स केबेले एग्जिस्ट करियोनी मन रहिला तो देखो से कोई सपोज ए गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स हैला ताले इनवर्स रो फार्मूला होची a inverse is equal to adjoint a divided by determinant a मो बॉक्स करी भी लिखि छी तुम देखि पारियो a inverse is equal to adjoint a divided by determinant a हाँ देखिलो फार्मूला ए फार्मूला मन रखो एक्सेस हमर एग्जांपल किछि अछि मु तुमको कहिबी एटा सल्ला पर हमर मैट्रिक्स मेथड आछि मैट्रिक्स मेथड कोन कहूचे सुनो जदि हमर सेम तीनटा इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स देछि कोन देछि यदि a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 गोटे इक्वेशन हला a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 आ गोटे इक्वेशन हला a3x plus b3y plus c3z equal to d3 suppose तीन इक्वेशन हला 3 इक्वेशन with 3 वेरिएबल with constant ताहले या सॉल्यूशन हम केमदी करियो हम को सुनो ताहले देखो मु ए गोटे मैट्रिक्स नै छी जारे की x कोएफिशिएंट जो गोटे साइड लिखिले a1 a2 a3 गोटे कॉलम रे अगेन y रो कोएफिशिएंट जो b1 b2 b3 सेकंड कॉलम रे लिखिली सिमिलरली z रो कोएफिशिएंट c1 c2 c3 को मु
थर्ड कॉलम रे लिखिली तो लेखिकी गोटे मैट्रिक्स बनैली ए तापर देखो बी गोटे मैट्रिक्स बनैली जार की राइट साइड जहाँ कांस्टेंट देछि हमर एडी कांस्टेंट के देछि d1 d2 d3 अछि तो से d1 d2 d3 कांस्टेंट जागो नै कि मु आउ गोटे मैट्रिक्स बनैली बी देखि परछो हाँ सर तापर हमर जो वेरिएबल देछि x y z तीनटा वेरिएबल को नै कि मु गोटे मैट्रिक्स बनैली से होछि हमर x तो मु तीनटा मैट्रिक्स बनैली गोटे a नेली a रे हमर x y z रो सब जा कोएफिशिएंट रहिला मु b गोटे मैट्रिक्स नेली जोडी कि हमर ओनली कांस्टेंट टर्म जा रहिला जा कि हमर इज इक्वल टू 4 देछि आउ x गोटे मैट्रिक्स नेली जोडी कि हमर ओनली तीनटा वेरिएबल जो देछि से रहिला x y z ताहले हमर जो इक्वेशन जहा लिखिछि सेटा इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू b जदि हमें एक्स वाई जेड रो कोएफिशिएंट ए को लिखली आउ एक्स वाई जेड वेरिएबल जाको रखिली ताले मल्टीप्लिकेशन मु मेथड शिखैथिली तमु से मेथड जदि मल्टीप्लाई करियो हम सेम इक्वेशन जहा लिखा है ता ही आसी जियो मल्टीप्लाई करले तो याको हमें ax इज इक्वल टू b फॉर्म रे लिखि पारिया ठीक अछि जेतेले हमें इक्वेशन जाको मु मैट्रिक्स बने की लिखली ax इज इक्वल टू b देखि पारछो राइट साइड मु बॉक्स रे लिखिछि तो एडा सेपटे पळेले कोन हबो b बाय a हे जियो b बाय a मींस a इनवर्स एडा ऊपर उठले कोन a टू द पावर -1 बा a इनवर्स हे जियो तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b ए मेथड रे हमको x y z रो वैल्यू बाहर करियो वाले हमको a इनवर्स x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b मेथड अप्लाई करियार अछि तो एडी a इनवर्स किन भारियो a इनवर्स में ऊपर फार्मूला लिखिछि एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट a करले हमर a इनवर्स बाहर जियो b रो वैल्यू हमें कांस्टेंट जा तळे गोटे मैट्रिक्स बने दैछे तो हमें a को b सहित मल्टीप्लाई करले जहा रिजल्ट आसला से हमर x y z रो वैल्यू हे जियो ठीक अछि याको हमें एग्जांपल नै कि देखिया एग्जांपल नै कि देखिले त माने फार बेटर बुझी पारियो नेक्स्ट रिजल्ट आ सेथिरे किछ एग्जांपल अछि देखि पारियो तो देखो फर्स्ट रे सी कोन कहिछि हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स विषय कहिछि गोटे मैट्रिक्स दे दैछि तार एडजॉइंट बाहर करो बोले कहिछि तो एडजॉइंट केमदी बाहर करियो सेडा भी मु कहूछि सुनो फर्स्ट कोन करियो मु तुम कोफैक्टर बाहर करिया सिखैथिली मन अछि ना हाँ सर हां तो कोफैक्टर सब जाक एलिमेंट काट दो देखो सी काटछि a11 a12 करी सब जाक कोफैक्टर काटछि a11 रे 1 अछि 1 रो कोफैक्टर से काटला -1 टू द पावर 1 प्लस 1 कला आउ के बंचिला हमर 1 2 3 1 बंचुछि ता डिटरमिनेंट ता काला 1 into 1 1 -3 into 6 3 into 2 6 आसियो तो 1 -6 इक्वल टू -5 आ -1 रे पावर 1 प्लस 1 ले 2 -1 रे पावर 2 मींस 1 तो सेति भाई एडी आसला -5 देखिलो ना तो एमदी a11 से जेमदी काढला से सबुजा एलिमेंट काढला a12 a13 सेमदी नोड री जा एलिमेंट जारो से कोफैक्टर काट देला कोफैक्टर काढिया तो मन जानछो बोलछे हाँ कहिथिले मु सर हां हाँ तो सर देखो से सबुजा रो कोफैक्टर काट देछि a11 रो कोफैक्टर असला -5 a12 रो कोफैक्टर 0 आसला a13 रो कोफैक्टर 5 आसला सेमदी a21 रो 2 a22 रो 0 आछि a23 रो कोफैक्टर हमरो -2 आछि तापर आसला a31 रो कोफैक्टर 1 a32 रो कोफैक्टर 0 एवं a33 रो कोफैक्टर आसला -1 टोटल 9 टी जा एलिमेंट रो से कोफैक्टर जा कर देला तापर कोफैक्टर करला परे एडजॉइंट मैट्रिक्स केम लिखियो देखो आमे जेतेले लेखुतले a11 a12 सेटा कोन रो रे लेखुतले a11 a12 a13 सब रो लेखुतले ना
किंतु एडजॉइंट करला बेले A11 A12 A13 टा कॉलम रे लिखियो गोटे पॉइंट मो नोट करो मु बारंबार कहूची A11 A12 A13 मैट्रिक्स लिखला बेले आमे सब बेले रो रे लिखुतले सिमती A21 A22 A23 सेटा हमर सेकंड रो होतला किंतु जेतेले एडजॉइंट बाहर करिया सेतेले A11 A12 A13 को सब बेले फर्स्ट कॉलम रे लिखिया सेंदी A21 A22 A23 को सेकंड कॉलम रे लिखिया ଆଉ A31 A32 A33 को सब बेले थर्ड कॉलम रे लिखिया से जेमदी देइछि देखि परछो तो हमर जहा जहा आसिला A11 A12 A13 को कॉलम रे लिखि देले हमर जो मैट्रिक्स टा फॉर्म होबो ताको हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स कहि परिया बुझिला हाँ सर तो हम दिगरा जिनस ऊपर एडजॉइंट मैट्रिक्स बाहर कला बेले माइंड करियार अछि गोटे हला कोफैक्टर बाहर करदा कोफैक्टर बाहर करिया परे रो रे हमें जा लगुतले ताको हमें कॉलम रे लिखिदा फर्स्ट रो रे जा लगुतले ताको फर्स्ट कॉलम रे लिखियो सेकंड रो रे जा लगुतले हमें ताको सेकंड कॉलम रे लिखियो और थर्ड रो रे जा लगुतले हमें ताको थर्ड कॉलम रे लिखिया ताहले जो मैट्रिक्स टा फॉर्म होबो ताको हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स बोली कहया बुझिला याको हाँ थरे दी थर प्रैक्टिस कर देले तम मानकर अभ्यास हो जियो नेक्स्ट पेज ए एरो मार्क जा होटल रे जे भी एरो मार्क जा करछो टी हटे दियो ए लाइन जा भी हटे दियो दीडा लाइन अछि देखो एडी से कोइजी फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इनवर्स बाहर करिया कोच तो इनवर्स फाइ मो फास्ट कोन कइतले डिटरमिनेंट बाहर करिया डिटरमिनेंट हमर 0 आछि ना नॉन 0 आछि चेक करिया देखो ये फर्स्ट मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट बाहर कला 1 2 3 1 मैट्रिक्स देछि ता डिटरमिनेंट काढला डिटरमिनेंट काढियारो तार केता आसिला -5 आसिला 1 into 1 1 -3 into 2 6 तो 1 - 6 -5 तार किछि वैल्यू आसिला 0 आसिलानी जदि 0 आस्तंदा यार इनवर्स बाहर नथंदा जेहेतु हमर 0 आसिलानी किछि वैल्यू देला ताहले यार इनवर्स बाहरी एबे इनवर्स पॉइंट देखो से फार्मूला पकेला एडजॉइंट A divided by determinant A adjoint A means adjoint matrix टा हम बाहर करियर अछि तो देखो ये adjoint matrix में फर्स्ट कोफैक्टर जा काढला देखि परछो तो माने काढला से प्रति चारटा एलिमेंट अछि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तो चारटा एलिमेंट तो चारिटे जे एलिमेंट से कोफैक्टर बाहर कला देखि परछो A11 A12 A21 A22 काटछि देखि परछो तो हाँ सर तो देखो से चारटा जा एलिमेंट रो फर्स्ट कोफैक्टर बाहर कर देला कोफैक्टर बाहर कला बेले हम कोन कहितली जहा कॉलम रे लिखुतलो जहा रो रे लिखुतलो ताको तुम माने कॉलम रे लिखियो तो देखो से सेम से बनै छै एडजॉइंट A इक्वल टू A11 A12 को कॉलम रे बनै छै ना अगेन देखो A21 A22 सेकंड कॉलम रे लिखि छै जोडा कि सेकंड रो रे तुम माने लिखुतलो हाँ ता अनुसार तुम लिखि देलो एडजॉइंट मैट्रिक्स टा भारी पड़ला तमरो एबे देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स बाहला परे A इनवर्स र फार्मूला पकरते एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A तो देखो एडजॉइंट A केते आछि हमरो 1 -2 -3 1 देखो मैट्रिक्स टा से लिखिला तापर से कोन कला हमर डिटरमिनेंट A आछि -5 तो डिवाइडेड बाय -5 लिखिला बा डिवाइडेड बाय -5 लिखियाटा जा -1/5 इनटू एडजॉइंट A लिखिया था हो ना नहीं रे हाँ सर अरे A/5 लिखियाटा सर। जहा 1/5 इनटू A लिखियाटा ताहा ना हाँ सर हाँ तो से एडी सेमदी ही लिखि छी तो तले डिवाइडेड बाय 5 रा से कोन करछि साइड को आनी की 1/5 कर दी छी बस एती तमे को डिवाइडेड बाय -5 भी लिखिले होबा ये कोन करछि -1/5 कर दै छी इनटू एडजॉइंट A कर दै छी
तो मैट्रिक्स केस रे सबले मन रखियो जहां भी डिवाइड करियो प्रति एलिमेंट सहित डिवाइड करियो कोन कहली मैट्रिक्स केस रे जदी आमे किछि डिवाइड करछु ताहले से मैट्रिक्स जेते एलिमेंट अछि सब जा सहित डिवाइड करियो हाँ तो देखो जेहेतु चारटा एलिमेंट अछि देखो से चारिटा जा एलिमेंट सहित -5 डिवाइड करछु फर्स्ट 1 अछि 1 सहित -5 डिवाइड करियो -1/5 आसला सेकंड -2 अछि -2 रे -5 डिवाइड करियो तार माइनस माइनस कैंसिल हेगी 2/5 आसला देखि परछो हाँ सेम देखो थर्ड रे -3 अछि -3 रे -5 डिवाइड करियो -5 नाइस कैंसिल हेगी तार 3/5 आसला अब 4 रे 1 अछि 1 सहित -5 डिवाइड करियो -1/5 आसला तो जहा रिजल्ट आसला से होची हमर ए इनवर्स बा मैट्रिक गिवन मैट्रिक्स रो इनवर्स बुझला इनवर्स बाहर करियारो सर आओ थोड़ा कोई हाँ जानते सर हाँ आउ सर थरे माने कोउडा बुझिलान तो देखो को पाखरे बुझिलानी को फैक्टर बाहर करिया बुझिला हाँ सर को फैक्टर बाहर गला परे रो टाको कॉलम करी लेखियार बुझिला जेतेले हम रो टाको कॉलम करी लेखिले से हमर एडजॉइंट मैट्रिक्स हे होला एट देछि एडजॉइंट ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट भीतर लिखि से देखे a11 a12 a21 a22 कॉलम आकार तो ताको कॉलम रे पगला एडजॉइंट मैट्रिक्स बाहरी पड़ला एडजॉइंट मैट्रिक्स बाहरिया पर एज पर हमर फार्मूला अनुसार एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए कोला तो एडजॉइंट मैट्रिक्स दाहा देछि ताको से कॉपी पेस्ट करी लिखि देला एडजॉइंट ए जगह रे डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए दा हमर ऊपर -5 आछे देखे तो से -5 को सब जा एलिमेंट सहित डिवाइड कर देला डिवाइड करला जा रिजल्ट आसला से हमर इनवर्स मैट्रिक्स हे होला सब जा 1 सहित -5 डिवाइड कला -3 सहित -5 डिवाइड कला -2 सहित -5 डिवाइड कला आउ थरे अगेन 1 सहित -5 डिवाइड कला जहा आसिला से हमर इनवर्स हे होला बुझिला हाँ सर समस्त बुझिला ना गुड दी जण आ बुझिला बुझिला सर नहीं सर बुझिला बुझिला सर तो सौल देखो कौन कुछ हमको दीड इक्वेशन दे देला देखि परछो गुटे हला x + 2y = 3 गोटे इक्वेशन देला आउट देला 3x + y = 4 आउट इक्वेशन देला दीड इक्वेशन देछ दीडा वेरिएबल भी अछि x y से कहूछ जे मैट्रिक्स मेथड साहाय्य यार सॉल्यूशन बाहर करो तो मु तुमको कहितले मैट्रिक्स मेथड ax = b बा x = a इनवर्स * b तो देखो जेतेले हमर दीडा इक्वेशन देला a गोटे नेला जाने कि x रो कोएफिशिएंट की अछि 1 और 3 अछि देखि परछो इक्वेशन रे गोटे हला x + 2y गोटे दैछि और गोटे 3x + y ओनली गोटे इक्वेशन दैछि तो x रो कोएफिशिएंट 1 और 3 सिमिलरली y रो कोएफिशिएंट गोटे आसला 2 गोटे आसला 1 एग्जांपल 16 देखो मु कहूछ एग्जांपल 16 तो ए गोटे मैट्रिक्स आसिला जार कि 1 3 2 1 हाँ आसीला गोटे मैट्रिक्स जेहेतु एडी कांस्टेंट के अछि इक्वल टू पर 3 और 4 अछि तो से बी मैट्रिक्स नेला जार कि कांस्टेंट 3 4 लिख देला आ x एडी हमर दीडा वेरिएबल दैछि खाली x आ y दैछि तेते लेरी x = xy नै होला तापर से कोन कोला जेहेतु हमें x = a इनवर्स * b करिया तो इनवर्स देछि तो फर्स्ट हम चेक करियार अछि जे यार इनवर्स बाहरियार अछि इनवर्स में बोले हम फर्स्ट डिटरमिनेंट काढिया डिटरमिनेंट हमर जदी 0 आसीओनी ताहले जायगी हम तार इनवर्स काढी परिया तो देखो डिटरमिनेंट काढला डिटरमिनेंट -5 आछि काई ना यार सेम ऊपरटा ही देछि 1 2 3 1 आ देछि ना एग्जांपल 15 रे जो क्वेश्चन आइछि एग्जांपल 16 रे भी से क्वेश्चन ही आसीला
मैट्रिक्स हमर 1 2 3 1 तो सेम प्रोसेस यूज करिया इनवर्स पई हम तो सेम प्रोसेस जदी हम यूज करिया या सॉल्यूशन जा आसे ता सॉल्यूशन इसे या काइना सेम क्वेश्चन तो यार इनवर्स केते आसिला देखो ए इनवर्स ता हमर जहा आछि से ताको पकै दैछि देखो ए इनवर्स केते आछि -1/5 2/5 3/5 और -1/5 देखि परछो तो हाँ सर एडी अछि देखो मु जोडी राइट मारली ए इनवर्स या जहा वैल्यूटा एडी पकेछि तापरे इनटू बी करछि देखो बी कोन दैछि 8 दैछि देखो बी 3 4 दैछि तो जेहेतु ये 3 4 दैछि इनटू 3 4 कला तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b a इनवर्स जगह a इनवर्स रो वैल्यू पकेला b जगह b रो वैल्यू पकेतला एबे देखो ये कोन मल्टीप्लिकेशन रे रोइला ना a इनटू b आकार रे रोइला हो ना नहीं तो मल्टीप्लिकेशन मु तुमको कोन सिखैथिली फर्स्ट रोडा फर्स्ट कॉलम सहित मल्टीप्लाई हबो तो देखो एडी से केंदी मल्टीप्लाई कला -1/5 डा 3 सहित मल्टीप्लाई हला -1/5 into 3 तो -3/5 प्लस 2/5 डा 4 सहित मल्टीप्लाई हला तो 2/5 डा रे 4 मल्टीप्लाई कले केता 8/5 तो से लिखिस देखो -3/5 प्लस 8/5 सेमदी सेकंड रे कियो अछि 3/5 गोटे अछि आ -1/5 अछि सेकंड रो रे तो 3/5 डा हमर 3 सहित मल्टीप्लाई हला 3/5 डा 3 सहित मल्टीप्लाई होबारो 9/5 आसिला तापरे -1/5 अछि -1/5 डा अगेन 4 सहित मल्टीप्लाई कला -1/5 डा 4 सहित मल्टीप्लाई करियारो -4/5 आसिला देखि परछो से लेखा आइछि तापरे से दिरा से सॉल्व करछि फर्स्ट डा सॉल्व करले लॉस आगो 5 आछि तो 5 आसला पर -3 प्लस 8 तो 5 आसला 5/5 इज इक्वल टू 1 आसला इज इक्वल टू 1 लिखिछि देखछो सेकंड टा भी देखो लॉस आगो 5 आछि 9 - 4 5 तो 5/5 1 तो दीडा तार 1 1 आसला जेहेतु हमर दीडा वेरिएबल x y निथिले हमर दीडा वैल्यू 1 1 आसला तो x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 देखि परछो से लिखिछि x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 एडा होछि या सॉल्यूशन बस एतिकी याठो किछि कष्ट नै देखि परलो हाँ सर एबो बस एति आगा यार हाँ किछि सर अधिका न एति कर देले तमे तमरो 5 की केते थिबो मार्क आराम से पाइ जिवो ते देखो एबो एग्जांपल 16 रे कोन देथिला हमको दीडा इक्वेशन देथिला जार की दीडा वेरिएबल थिला एग्जांपल 17 रे हमो तीनडा इक्वेशन देछि तीनडा इक्वेशन रे तीनडा वेरिएबल देछि तो फ्रीज नेक्स्ट उल्टा ओडी तो देखो जेहेतु से तीनडा वेरिएबल देथिला त हमरो मैट्रिक्स कोन আছে तीनडा इक्वेशन तीनडा वेरिएबल हेले हमरो ए मैट्रिक्स टा भी 3x3 आजियो काइना तीनडा वेरिएबल अछि पुनी तीनडा इक्वेशन भी अछि तो से क्वेश्चन रे तमे देखिले देखियो 1 2 1 होची x रो कोएफिशिएंट ए रे जो देछि देखो ये जो हमरो ए मैट्रिक्स लिखिछि से कोन लिखिछि 1 2 1 गोटे रखिछि से होची हमरो x रो कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम रे लिखिछि 2 1 1 से होची हमरो y रो कोएफिशिएंट एवं थर्ड कॉलम रे लिखिछि 3 1 2 ये होची हमरो z रो कोएफिशिएंट तापर देखो से जो क्वेश्चन देछि सेतिरे कांस्टेंट टर्म देछि 8 8 6 तमे से क्वेश्चन ला देखिले जानि परियो सेतिरे क्वेश्चन लिखा आइछि 8 8 6 आ हमर जेहे तीनटा वेरिएबल अछि सेते से लिखि देला x x y z तापर देखो ए जहा देछि ता डिटरमिनेंट बाहर कला ए रो डिटरमिनेंट बाहर करेरो तार -2 आसिला डिटरमिनेंट बाहर करे समस्त जानचो तो डिटरमिनेंट बाहर करले तमर आसियो -2 जेहेतु -2 आसिला तो इनवर्स आराम से बाहरी परियो हमें सब जार कोफैक्टर काढला 9टा एलिमेंट अछि 9टा एलिमेंट रो देखो से कोफैक्टर बाहर कर देला
को फैक्टर बाहर कला देखि परछो a11 a12 करिकी हाँ सर तापर देखो को फैक्टर बाहर करिया परे सी अगेन a11 a12 a13 को कॉलम आकार रे लिखि देला सेमती a21 a22 a23 को सेकंड कॉलम और a31 a32 a33 को थर्ड कॉलम रे लिखिला तो थर्ड कॉलम रे लिखियारु तार एडजॉइंट एडा बाहरी गला तो हमर एडजॉइंट ए बाहरी पड़ले आराम से इनवर्स बाहरी पड़ियो इनवर्स रो फार्मूला कोन एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए हो ना रे तो देखो एडजॉइंट ए जहा आसी एडजॉइंट ए जहा आसी से ता तळे लिखि देला देखि परछ एडी एडजॉइंट ए जहा आसी से साइड लिखिला हमर देखो डिटरमिनेंट ए एडी आसी -2 देखि परछ तो -2 हाँ तो सर सी आगरे देखो लिखिला 1 बाय -1/2 लिखिला एडजॉइंट ए आगरे तापर बी देछि बी हमर कोन आसी मैट्रिक्स ता 886 ए पाखर आसी बी तो सी 886 नहीं वाला अब मल्टीप्लिकेशन करिया मल्टीप्लिकेशन कोन फर्स्ट ए इनवर्स बी को मल्टीप्लाई कर दो जहा रिजल्ट आसे सेतिरे -2 डिवाइड कर दो तुम मल्टीप्लिकेशन करि परियो तो मु लास्ट टाइम भी कहली या पूर्व क्वेश्चन रे फर्स्ट देखो हमर फर्स्ट कॉलम रे कोन देछि फर्स्ट सुनो फर्स्ट रो डा करियो फर्स्ट रो रे कोन लिखा है 1 -1 लिखा है तो 1 -1 को 886 से तो मल्टीप्लाई करियो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8 -1 को 8 से मल्टीप्लाई कलो -8 तो +8 -8 कटि जियो आ -1 को 6 रे मल्टीप्लाई कले -6 रहियो तो देखो -6 पकै छी सेंदी -3 को 8 रे मल्टीप्लाई कले -24 आसियो -1 को 8 रे मल्टीप्लाई कले -8 आसियो -24 -8 -32 प्लस 5 को 6 रे मल्टीप्लाई कले 30 आसियो तो देखो सेडी आस्तिला -32 प्लस 30 तो -2 आसिला सेकंड ता देखो -2 लिखि छी से -6 तळगु सिमिलरली 1 को 8 रे मल्टीप्लाई कले 8 अगेन 1 को 8 रे मल्टीप्लाई कले 8 तो 8 प्लस 8 16 हला -3 को 6 रे मल्टीप्लाई कले -18 आसियो प्लस 16 -18 तो आंसर आसला अगेन -2 तो से लिखि देखो -6 -2 -2 ताकू ऐसे तीनटा जगह हम कहीं डिवाइड करिया -2 रे डिवाइड करिया जेतु डिटरमिनेंट आछि -2 तो -6 को -2 रे डिवाइड करिया 3 आसिला -2 को -2 रे डिवाइड करिया 1 आसिला अगेन -2 को -2 रे डिवाइड करिया 1 आसिला तो 3 1 1 आसिला ना देखि परछो तो x y z is equal to 3 1 1 that means x is equal to 3 y is equal to 1 z is equal to 1 एतिरे हमर सल्ला पाठ आओ तो ठीक